Hello friends, welcome to Genu IS. मैं मनोज जायसवाल, as you know, your mentor of Indian polity. Today in this class, we are going to discuss how to write best answers of UPSC main exam and how we will learn it. We are going to learn it through the previous year's questions of UPSC, and you can see here PYQ means UPSC 2023. It means that in this class we are going to discuss the questions of 2023. Okay, so in 2023, the first and the foremost question, which is very good question, and in fact is a very much factual also, constitutionally guaranteed judicial independence is prerequisite of democracy. And I'm saying it is actually easy or simple and factual question. Why? Just because of this. Here it is written very clearly that what you need to tell, constitutionally guaranteed. Okay. So what has been given in the constitution? It means what? It means आपको बताना है कि भाई कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के बेसिस पर in India, judiciary enjoys independence, or you can say how independent judiciary has been established. Though, in principle, I would like to remind you, in principle, nothing is completely independent in any system. It is very clear. But it is also clear that judicial independence is from is in India, and this independence is ensured by the constitution itself, and most importantly by removing, or you can say avoiding, any kind of influence or interference of executive body. लेजिस्लेचर में तो रहेगा, भाई जजेस को कैसे हटाएंगे? तो जजेस को ऐसे सीधे एग्जीक्यूटिव नहीं हटा सकता, लेजिस्लेचर से हटेगा, पार्लियामेंट से. So what that ensures independence. So how it is? It is actually factual question. Remember always. तो क्या बताना है? Constitutionally guaranteed, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस बताने होंगे, और when we will give the the provisions in our answer, that are those provisions shall automatically prove that this independence of judiciary is prerequisite of democracy. तो दो ही पार्ट हैं इसके, और कुछ है नहीं. How you should start your intro depends upon you. Okay, you can start with the democracy, like the smooth functioning of democracy is possible only then when there is an independent judiciary in a particular country. Either or, you can start with the judicial independence, like the constitution of India provides for an in नहीं ऐसे शुरू करें तो ज्यादा अच्छा होगा. The constitution of India provides for provides for a parliamentary form of democratic government with an independent judicial system. और बस डन, इतना ही लिखना है. क्यों? क्योंकि आगे बढ़ोगे तो आप पहले ही लाइन में आंसर दे दोगे. ठीक है, तो इसलिए आप अपने आंसर के इंट्रो को इन्हीं दो पैटर्न पर शुरू कर सकते हो. फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा कि आप आगे बढ़ोगे. हम्म, ये देखिए, parliamentary form of democratic government in which the concept of an independent judiciary is a fundamental pillar of democracy. Intro आपका लिखा हुआ है. This is your intro. Okay, इसी पर आपको आगे बढ़ना है. फिर
क्यों ऐसा है तो आप बता देंगे कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्या करता है, कोर्ट्स को और जजेस को अलाउ करता है कि वो जो है अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको फ्री और फेयर तरीके से एग्जीक्यूट कर सके, डिस्चार्ज कर सके, विदाउट एनी इंटरफेरेंस और विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अदर बॉडी, स्पेशली द एग्जीक्यूटिव। ओके, और फिर क्या कह देंगे कि दिस इज एसेंशियल फॉर प्रिजर्विंग द वेरी एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी विद इन अ नेशन और विद इन अ कंट्री। आई प्रेफर नेशन इन प्लेस ऑफ कंट्री। चलिए, तो ये आपकी शुरुआत हो गई। अब जो है सीधे आप बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है जो ये गारंटी देता है। तो पहली बात, अपॉइंटमेंट से शुरू करेंगे। ओके, कि अपॉइंटमेंट जो जजेस का है वो कैसा है। तो आपको पता है जजेस का अपॉइंटमेंट बहुत ही डिफरेंट है ना। और उसमें क्या होता है आप ये भी बता देंगे। ठीक, तो कहने का मतलब हुआ कि इंडिपेंडेंस यहीं से शुरू करिए। ठीक है, फिर टेन्योर बताइए कि उनको जब तक आइदर एज ऑफ 65 और नथिंग। सुप्रीम कोर्ट के जजेस सिक्योरिटी ऑफ टेनर पाते हैं कैसे, अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 2। ठीक है, 65 ईयर ऑफ एज। और हाई कोर्ट्स वाले 217 में 62 ईयर। मींस व्हाट, नथिंग कैन go against their tenure as constitutionally provided until unless they are not removed। और कैसे, by the president upon an address by the parliament। ठीक है, यानी कि इनको जो हटाने का तरीका है वो जो है, रिमूवल इज अ वेरी डिफिकल्ट, आप कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो, आसानी से इनको नहीं हटा सकते हैं। कैसे नहीं हटा सकते हैं तो आप बताएंगे कि दे कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट अपॉन एन एड्रेस पार्लियामेंट। इतना ही लिखना है, ज्यादा डिटेल नहीं लिखना कि अब उनका ये चाहिए वो चाहिए, जुडिशियल कमेटी बनेगा, वो सब लिखने का जरूरत है नहीं इधर, क्योंकि उतना वर्ड का लिमिट नहीं है। Thereafter, should go that the salaries and allowances of the judiciary or the judges is charged upon the consolidated fund of India. Thereafter, you should go with the powers and jurisdiction of Supreme Court। तो आप कहोगे कि इसका jurisdiction द एंटायर इंडिया है, फिर इसके पास ओरिजिनल jurisdiction है। ओके, तो और क्या कर सकता है ये, सबसे खास इसमें जो बताना है आपको, दैट इज आर्टिकल 32, आर्टिकल 13 मींस जुडिशियल रिव्यू एंड फिर पीआईएल और जुडिशियल एक्टिविज्म भी आप बता सकते हैं। और इन सम केसेस सुप्रीम कोर्ट टेक्स सुओ मोटो आल्सो। क्लियर है, ये बता देंगे। देयर आफ्टर, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, है ना। तो आपको बता देना है कि भाई आर्टिकल 129 में 129 में सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट पर पनिशमेंट देने का पावर है, और 215 के तहत हाई कोर्ट्स को पावर है। फिर उसके बाद आप आर्टिकल 50 बता देंगे, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इट इज क्लियरली मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 50। तो जुडिशरी क्या हो गई, एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल सेपरेट हो गई। फिर आप, अच्छा ये पैरावाइज अगर आप लिखेंगे तो आई प्रेफर पैरावाइज आंसर। पॉइंट में हमने भले यहां आपको दे दिया कि आपको इतने पॉइंट्स लिखने चाहिए, बट यू शुड राइट योर आंसर इन द पैराग्राफ दैट represents your writing skill also. And if you are having a good writing skill, then your examiner will be more happy, and if examiner will be happy, then will give you the marks also happily। चलिए, इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद अगले मुद्दे पर जाना है।
और बताना है कि भाई अब पैरा 2 है ये कि और क्या होता है। तो आप बताएंगे कि जुडिशरी इफ इट इज इंडिपेंडेंट देन इट एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड governance. What kind of governance? Good governance. Thereafter, you should say that it upholds the rule of law. और फिर आप एक केस लॉ भी दे देंगे, नंदिनी सुंदर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, या यूं कहें कि उसने जो भी कहा कि रूल ऑफ लॉ जो है वो डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिर आप सेफ गार्डिंग इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टीज, ठीक है, तो इसमें आप सीधे फिर से वही चाहेंगे तो 32 का दे देंगे एग्जाम्पल भी। यू कैन गिव द एग्जाम्पल आल्सो आर्टिकल 32, हालांकि लिखने की जरूरत बार बार नहीं है, आपने वहां पर लिख दिया है, इसलिए नो इशू। ठीक है, तो क्या करेंगे आप बताएंगे। फिर के एस पुट्टा स्वामी जजमेंट बता देंगे कि जुडिशरी ने कहा कि भैया प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बहुत जरूरी है, और राइट टू प्राइवेसी का ये मसला था। तो इस केस को आप वहां लिख सकते हैं। अब इससे क्या हो रहा है? ओके, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री इफ यू आर नॉट हैविंग प्राइवेसी राइट्स, then how you can lead a good dignified life? That is impossible. That is why this case is also important in writing the answer of this question. Okay, now फिर आप बता देंगे प्रिवेंशन ऑफ ऑटोक्रेसी एंड अथॉरिटेरियनिज्म भी होता है अगर जो है क्या रहता है, अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। एंड इन दिस यू हैव टू गिव द केस ऑफ मिनर्वा मिल 1980, ठीक है, जिसमें सीधे उसने कहा कि पार्लियामेंट का अमेंड करने का लिमिटेड पावर है, यानी कि आप यहां बताएंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि देयर इज द concept of basic structure applied in case of any amendment to the constitution. Okay, basic structure you can change. Okay, और फिर आप बताएंगे कि it is independent judiciary which ensures checks and balances. If अब इसमें क्या है, तो if there is anything, ठीक है, means any legislation, और फिर क्या होता है, if the legislation is violating the constitutional provisions, तो क्या हो जाएगा, उसको आर्टिकल 13 यानी रिव्यू करेगा, जुडिशियल रिव्यू। Similarly, if executive is discharging anything which is not as per the constitutional provisions, then also judiciary holds a check. Okay, so this will be your answer in the second paragraph। और इस तरह से अब आप कंक्लूजन में जाते हुए कहिएगा, with the above discussion it is clear that the judicial independence is a prerequisite of democracy। That's it। आपने क्या कर दिया, like नाउ इट इज प्रूव्ड, जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करते थे, डिडक्टिव मेथोडोलॉजी, this answer writing methodology is actually deductive methodology, what you have said in a manner of logical presentation one by one, and finally the thing or the question is proved। Okay, now we are moving ahead to the next question, and the next question is, who are entitled to receive free legal aid? Assess the role of NALSA, National Legal Services Authority, in rendering
free legal aid in India? This question is also highly factual, related with the current affairs. As you know, उस टाइम में नालसा जो है वो चर्चा में आया, और अगर चर्चा में आया तो क्या हो गया, वो क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो कौन लोगों को फ्री लीगल एड मिलेगा? द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, एंड सेकंड इज रोल ऑफ नालसा। यही आपको बताना है, और मान लो फिर वे फॉरवर्ड थोड़ा बहुत बता देना है, दैट्स इट। ओके, so you can start with the constitutional provision कि फ्री लीगल एड के बारे में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ही कहा गया है। यू कैन स्टार्ट विद दैट, द फ्री लीगल एड हैज बीन, और या आप जो है आप सीधे कहेंगे द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द सिटीजन्स। अब किनको मिलेगा, ये क्वेश्चन है। तो बहुत फैक्चुअल है और बहुत सिंपल इसका आंसर भी है फ्रेंड्स, देख लीजिए आप। इंट्रो आप शुरू कर दिए, ठीक है, और आप बताना शुरू कर देंगे। SCs, STs, विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग और बेगार, है ना, वीमेन एंड चिल्ड्रन, मेंटली इल और डिस्चार्ज्ड या डिसेबल्ड पर्सन, एंड अ पर्सन हु इज गोइंग थ्रू टफ टाइम्स, बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए भी ये हो जाएगा। ठीक है, डिजास्टर के कारण उसको दिक्कत हुई है, वायलेंस हुआ है, एथनिसिटी है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो आप कह सकते हैं। ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल वर्कमैन को भी आपको देना है फ्री लीगल एड। तो इतने लोग इंटाइटल्ड हैं, दीज आर इंटाइटल्ड फॉर द फ्री लीगल एड। अब सीधे आ जाइए कि भाई ऐसे भी इंडिविजुअल्स हैं जो इमोरल ट्रैफिकिंग, हालांकि वो पीछे आ चुका है, ठीक है, फिर जुवेनाइल एक्ट के अंतर्गत फ्री लीगल एड, फिर साइकेट्रिक जो हैं प्रॉब्लम्स में, उनके लिए भी फ्री लीगल एड। ठीक है, और कहते हैं कि 1987 के मेंटल हेल्थ में जो डिफाइन किया गया है, उन्हें भी फ्री लीगल एड मिल सकता है। एंड फाइनली देयर इज एन other another criteria of economic weakness, और उसमें है कि those who are earning less than 5 lakh a year, they are also entitled। ओके, तो ये एक इकोनॉमिक बेसिस है, इनको बता दिया आपने। फिर उसके बाद आपका सीधे चला आएगा क्वेश्चन रोल ऑफ नेशनल जो है उस पर, नालसा पर, और सीधे सीधे रोल क्या है। तो पहली बात, नालसा क्या करता है, व्हाट इट डज, सो इट एक्सपैंड रीच एंड accessibility to the people who are in need of legal services or legal help। नालसा जो है ये काम लगातार कर रहा है, और इसने क्या किया है, लीगल एड क्लिनिक के नाम से इसको बढ़ावा दे रहा है। लीगल एड क्लिनिक जो है के नाम पर लोगों को लीगल एड फ्री मिलती है, मतलब वहां जाइए और अपना प्रॉब्लम्स को। फिर आपको पता है लोक अदालत लगती है, आप पढ़ चुके हैं कि लोक अदालत में फीस नहीं लगती है। फिर लीगल अवेयरनेस कैंपेन चलाता है, कैंप लगाता है, और ग्रास रूट लेवल पर जाकर के काम करता है। किसके थ्रू? लीगल एड क्लिनिक के थ्रू। सिमिलरली ये और एक चीज करता है, इट टारगेट्स द वनरेबल ग्रुप्स, और फिर विमेन को असिस्ट करता है, स्पेसिफिकली इन द डोमेस्टिक वायलेंस केसेस। ठीक है, और ड्यूरिंग लॉकडाउन दिस देयर वाज नेशनल लीगल एड हेल्पलाइन 15100। लीगल सर्विसेज जो हैं वो ट्रांसजेंडर्स के लिए भी हैं, और ट्रांसजेंडर का
ये राइट है कि उनको फ्री लीगल एड मिले, एंड नालसा इज playing a big role in this also. फिर आगे बता दीजिए, ठीक है। हक हमारा भी करके एक इसने जो है कैंपेन चलाया अमंग प्रिजनर्स, और उनको अवेयर करना है, करने के लिए कि भाई ये जो है जो प्रिजनर्स हैं उनके भी राइट्स हैं, दे आल्सो हैव द राइट्स। तो उनके साथ इनह्यूमन बिहेवियर नहीं किया जाना चाहिए। So now you can go for the conclusion of your answer by saying or by writing that there is a very good role being played by NALSA, though there are certain requirements to be addressed by NALSA. For example, there are number of cases in which people require free legal aid, especially those who are imprisoned in a very petty criminal cases, and they are not having, or they are not getting the free legal aid, and that's why they are imprisoned without any trial. और अगर आप जान लीजिए, if on this issue नालसा become successful, मैं केवल बता रहा हूं, become successful to address this problem, तो कितने पेंडिंग केसेस खत्म हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, बेचारे जिनके पास अपनी जमानत के पैसे नहीं है, 200 400 500 रुपया, वो भी केस चल रहा है, पड़े, ट्रायल नहीं हो रहा है, या और कोई प्रॉब्लम है, वो सब तेजी से खत्म हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आपको इसको लिखना चाहिए। थैंक यू। अगला क्वेश्चन। अच्छा, अभी इसमें रह गया है, फिर मेगा लोक अदालत भी ये लगाता है, ठीक है। अरे भाई, मेगा लोक अदालत भी लगाता है, ये एडीआर का मैकेनिज्म है, नालसा के द्वारा जो है ये भी होता है। तो सेटलमेंट्स होते रहते हैं, और आपको पता है इन द लोक अदालत देयर इज द प्रोविजन ऑफ पेटी क्रिमिनल केसेस सेटलमेंट आल्सो। तो नालसा का यहाँ रोल तो है, लेकिन कोर्ट्स में नहीं है, तो वहां भी होना, न कोर्ट्स में भी है लेकिन वहां शायद पहुंच नहीं है अच्छी, तो वहां भी करना चाहिए। ठीक है, कंक्लूड कर दीजिए। फिर अवेयरनेस कैंपेन एंड एजुकेशन जो चलाता है, उसको आप बता दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द स्टेट्स इन इंडिया seem reluctant to empower urban local bodies, both functionally and financially. This is a big issue in India, even after 73rd and 74th constitutional amendment. This is still a big problem. So you should start your answer with the democratic decentralization only. समझे? शुरुआत ही करिए अपने इंट्रो की, and in the intro you should tell that by 73rd and 74th Constitutional Amendment Act 1992, the democratic decentralization was done. ठीक है, and it is expected that if the local bodies will be more and more will be strengthened, then the goal of good governance can easily be achieved. अब कोई भी एक अपना इंट्रो रख सकते हैं, 2 3 4 लाइनों का, whatever you feel better you can write that, but I would like to say that you should start with democratic decentralization itself. ये आपको बहुत फायदा करने वाला है। तो ये स्टार्ट कर दिया। अब इसके बाद जो है, कैसे सीधे आ जाना है आंसर पर, कम टू द पॉइंट, और बताना शुरू करिए कि भाई ऐसे फंक्शनल
रिलैक्टेंस क्या है? तो एक्चुअली देयर इज द प्रोविजन that states shall devolve or states may devolve. There are number of things like financial resources के मामले में कहा गया कि state shall devolve but state didn't, है ना? तो यही से शुरू करना है। सबसे पहले limited devolution of functions by the state governments, and if they are having less functions, then they will be getting or they will have very less power and authority also. ठीक है? और क्या कहना है तो सीधे लिख दीजिए कि मेनी स्टेट्स हैव बीन वेरी स्लो इन ट्रांसफरिंग फंक्शंस लिस्टेड इन द 12th शेड्यूल टू अर्बन लोकल बॉडीज। सीधे लिखिए, ठीक है? तो इससे क्या होता है? दे आर नॉट वेरी मच कैपेबल और दे आर हैविंग वेरी लेस एबिलिटी टू गवर्न अर्बन एरियाज। सीधा फंक्शन नहीं है तो काम कैसा? फिर आगे बढ़ेंगे। पैरेलल बॉडीज बहुत हैं। देयर आर several states in which there have been establishment of parallel bodies like special purpose vehicle, है ना? अब ये क्या करते हैं? तो ये जो है एक तरह से पैरेलली काम कर रहे होते हैं, तो अर्बन लोकल बॉडीज का सिग्निफिकेंस वो कम हो जाता है, उनका रोल कम हो जाता है ना? तो ये बात आप बता देंगे। फिर अगला मुद्दा है नॉन ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट प्रोसीजर। इन मेनी स्टेट्स देयर इज very less transparency in the appointment of the officials in urban local bodies, especially in the elected bodies. There is less transparency. Elected bodies में भी मैं कह रहा हूं less transparency, ये आप लिखेंगे and you don't have to be worried, ठीक है? फिर मॉरल सॉरी मेयर जो होता है, मेयर का जो अथॉरिटी है उसमें मोस्टली ज्यादातर ऐसे स्टेट्स हैं जहां वेयर द मेयर्स आर बीइंग इलेक्टेड डायरेक्टली, और जब एक शहर का मेयर डायरेक्टली जो है इलेक्ट होता है तो आप सोचो कि उसके पास क्या हुआ? उसके पास मैंडेट बहुत बड़ा है। तो फिर क्या होता है ऐसे में? ईदर, यहाँ एक चीज नहीं लिखा है वो भी जोड़ दीजिएगा, ऑफनली जो है क्या हो जाता है? अथॉरिटी नॉमिनल होती है जबकि वो इलेक्ट होकर के आया है। कैसे? तो म्युनिसिपल कमिश्नर के कारण, जो सरकारी अधिकारी है। एंड ड्यू टू दिस, और दूसरा एक और इसमें पॉइंट जोड़ सकते हैं, यू कैन ऐड वन मोर पॉइंट दैट ऑफनली देयर अकर्स, क्या समस्या पैदा होती है? एमर्जेस क्लैश बिटवीन मेयर एंड म्युनिसिपल कमिश्नर, क्लास ऑफ पावर, क्लास ऑफ अथॉरिटी, ये होता है। तो क्या हुआ? स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इज हैम्पर्ड और मोस्टली और ऑफनली इट हैम्पर्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट विच यू शुड ऐड, फाइनेंशियल रिलैक्टेंस। आपको हेडिंग नहीं डालनी है, ये हेडिंग तो आपको डालनी नहीं है, ठीक है? आपको पैराग्राफ चेंज करना है और बताते चलना है कि ना, फिर आगे बढ़ते हुए कि देयर आर नंबर ऑफ फाइनेंशियल रिलैक्टेंसेस विटनेस्ड इन द स्टेट्स, ठीक है? सबसे पहले क्या होता है कि दे अर्बन लोकल बॉडीज फेस द crisis of finance or the financial resources, and mostly they are dependent on the grants provided by the states. फिर उनका जो रेवेन्यू कलेक्शन का है बहुत इनसफिशियंट है, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग broader areas to levy the tax or fee on everything.
और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनके पास डाइवर्सिफाइड जो है रेवेन्यू सोर्सेज नहीं है। सो दे लैक, थर्ड पॉइंट, दे लैक डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू सोर्सेस। ठीक है। और उनकी प्रॉपर, उनकी रेवेन्यू का 60%, द 60% ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज रेवेन्यू कम्स फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स। इसका मतलब apart from the property tax they are having a very small kind of, a really petty kind of financial resources। ठीक है। फिर इनफेक्टिव है कौन? तो स्टेट फाइनेंशियल कमीशन, फाइनेंस कमीशन बहुत बार इनइफेक्टिव साबित हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा, इट इज अकॉर्डिंग टू दी आरबीआई रिपोर्ट। आरबीआई रिपोर्ट कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट्स फेल टू एस्टैब्लिश स्टेट फाइनेंशियल कमीशंस as mandated by the act every after every 5 years। करते नहीं करते नहीं है। तो इससे भी क्या हुआ, उनको रिसोर्सेस मिल नहीं पाते हैं। अब क्या होना चाहिए? तो आपका कंक्लूजन भी यही है और वे फॉरवर्ड भी यही है। तो क्या करना चाहिए? फाइनेंशियल अथॉरिटी को एनहांस करें, मोर टैक्सेस उनको दिए जाएं, इनिशिएटिव सॉरी इनोवेटिव जो है फाइनेंसिंग को बढ़ावा दिया जाए। इसमें आप एक एग्जांपल दे सकते हैं कि गुजरात के, स्टेट ऑफ गुजरात में ऐसा बहुत कुछ किया जा रहा है। यहाँ तक कि some municipalities are having joint ventures with private sectors इन गुजरात स्टेट। तो आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर स्ट्रेंथनिंग डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स और ज्यादा होनी चाहिए। और आप यहां दे सकते हैं एग्जाम्पल कि एज इट वाज गिवन इन द थर्ड जनरेशन रिफॉर्म इन यूनाइटेड किंगडम। यूके में ये हो चुका है, इंडिया में अभी तक नहीं हो रहा है। Thereafter, capacity building, states should invest in the capacity building programs for local bodies। ठीक है। और ये इनिशिएटिव मिजोरम में और कर्नाटका में बहुत सक्सेसफुल रहा है और ऐसा करना चाहिए सभी स्टेट्स को। ठीक है। फिर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस मस्ट बी स्ट्रेंथन एंड स्ट्रीमलाइंड। और साथ साथ ये भी जोड़ दीजिएगा, ये तो अकाउंटिंग है, सोशल ऑडिट शुड आल्सो बी इंक्लूडेड देयर। सोशल ऑडिट, ठीक है, प्लस सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट, एवरीवन इज नोइंग। अब आ जाइए कंक्लूजन पर कि भाई क्या होना चाहिए। तो ऑल द स्टेट शुड गो ऑन द लाइंस ऑफ द स्टेट्स लाइक कर्नाटका ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग। फिर जैसा गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, इन लोगों ने क्या किया है, मोर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हैज बीन गिवन बाय देम। तो सारे स्टेट्स को ऐसा करना चाहिए। ठीक है। फिर 74th अमेंडमेंट के जो है कुछ क्या कहते हैं विजन्स हैं जो एम्पायर किए जाने चाहिए। और पॉलिटिकल कमिटमेंट भी इफेक्टिव रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है ऑफ द स्टेट्स। किसका कहेंगे? स्टेट्स का कहेंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विद another question। The fourth question: compare and contrast the British and Indian approaches to parliamentary sovereignty। I would like to discuss this question again on a figure, or through a figure I would like to say here। एक फिगर बनाते हैं और उसी में फिर आपको बताते हैं कि कैसे होता है ये खेल। चलिए आते हैं आगे और समझते हैं। See, this is, you can suppose this is
a system of United Kingdom. Judiciary is somewhere here as has only control over the executive. It is crown and thereafter council of ministers headed by prime minister. It is the legislature called as parliament. It is executive. Similarly here, but the question is related with the parliamentary sovereignty. It is president, council of ministers headed by prime minister. But as I have told you, judiciary is here, but in this figure, I would like to make the figure like this. Judiciary is here and it has a control over both the parliament and the executive. Isn't so? Most of the things, this part is similar. Okay, here, but here parliament can legislate any legislation, any law, okay, and there is no any restriction or no any limitation in United Kingdom. कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। ब्रिटिश सिस्टम में कोई लिमिटेशन नहीं है, मींस देयर इज नो एनी प्रोविजन ऑफ द जुडिशियल रिव्यू डन बाय द जुडिशरी। ओके, और आप ये भी समझ लो, यू मस्ट अंडरस्टैंड इट, and if you will understand it, you will never give wrong answer even in prelims or any exam in mains also. If there is no any written constitution in United Kingdom, then on what basis judiciary can review any law? By citing that it is against the constitutional provision, or it is violating the constitutional provision. It is not possible there. So actually, there is no any kind of limitation. That is why it is to be said for the British Parliament that British Parliament can do anything except to make a male female and a female male. Lekin in the present scenario, it is also possible. Why? Because transplantation is not illegal neither in United Kingdom nor in India also. So क्या हो गया? British Parliament can do anything. There is no any restriction. While in India, if any law has been passed, then as per the decision given by the Supreme Court, the basic structure can never be damaged. The basic structure of the Constitution. So there is a limitation in India, and that limitation is the basic structure. और ये क्यों आया है? तो due to the very basic nature of the written constitution in India and having an independent judiciary which can review the laws. क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ गए हैं, तो मुझे लगता है कि आंसर आपको लिखना बहुत आसान है। ठीक है, डिस्कस द नहीं, ये क्या हो गया? अच्छा, मैंने इसको यही बोला था। तो क्या करना है आपको? यू हैव टू स्टार्ट विद द इंट्रो। ओके, इन इंट्रो आप लिखेंगे बोथ द
UK and India has parliamentary form of democratic government. मीन्स इंट्रो आपको वैसा ही दे देना है कि भाई दोनों कंट्रीज में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं, लेकिन फिर आप वही फिगर बनाएंगे बढ़िया सा जो मैंने लिख दिया है आपको, और शो करेंगे बोथ द फिगर इन योर बॉडी। यू शुड स्टार्ट बट, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म का जो सिस्टम है उसको यहाँ बता देंगे, ठीक है, कि देयर इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि कंपेयर एंड कंट्रास्ट है तो दोनों बताएंगे। बोथ हैव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। फिर पार्लियामेंट, लॉ मेकिंग पावर, ठीक है। और बेसिकली यही क्वेश्चन है आपका, लॉ मेकिंग पावर, पार्लियामेंट्री सॉवरिनिटी, बोथ आर सॉवरिन, सबसे पहले लिखेंगे both are sovereign, the both, sorry, the parliament of both the countries, the parliament of both the countries are sovereign, ठीक है। ये जरूर लिखना, सॉवरीन दोनों हैं, ये मत सोचना कि एक सॉवरीन है तो दूसरा नहीं है। व्हाई? बिकॉज बोथ हैव लॉ मेकिंग पावर सिमिलरली। तो आप कहेंगे कैसे, तो बताएंगे कि बोथ कैन लेजिस्लेट एनी लॉ, ठीक है, बोथ कैन अमेंड एंड रिपील एनी लॉ, ओके। फिर उसके बाद आप आएंगे, देयर आफ्टर यू हैव टू टेल अबाउट आर्टिकल 13 in India, okay। Thereafter you should go with the judicial review, और बताएंगे कि which is not possible in UK, no judicial review, compare and contrast। Thereafter you have to tell in the judicial review क्या होता है, तो whether the law is in conform in uh, is on the lines of the constitutional provision or not. Okay, if it violates, then the judiciary shall declare it null and void, which is not possible in UK. Thereafter, what you have to tell? You have to tell finally, कि साहब, in India there is one more thing, okay, and that is the doctrine of basic structure, ठीक है। और बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को आप चाहे तो लिख दें और बता दें केस के साथ, एंड दिस विल बी योर आंसर। फाइनली यू हैव टू टेल बोथ आर सॉवरेन, बट देयर इज सम limitation due to the concept of basic structure. Please never write that Indian parliament is less sovereign or not sovereign। ये गलती कभी मत करना। सॉवरीन है, दोनों सॉवरीन है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई क्लास कल को आता है तो क्या होगा, लड़ जाएगी गवर्नमेंट, कहेगी पार्लियामेंट से जो लॉ पास हुआ है उसको आपको करना पड़ेगा। आज इट इज बीइंग विटनेस रिसेंटली, रिसेंट ईयर्स में क्या हो रहा है ऑन द इश्यू ऑफ कॉलेजियम सिस्टम एंड एनजैक। एनजैक को तो उन्होंने कर दिया कि इट इज द इंटरफेरेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी, बट हाउ मच क्रिटिसिज्म इज बीइंग फेस्ड बाय जुडिशरी। जुडिशरी को कितना क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग, इवन मैं भी करता हूं। आई एम आल्सो ऑफ द ओपिनियन दैट देयर मस्ट बी ट्रांसपेरेंसी इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ये गलत बात है कि जज का बेटा ही जज हो जाए, ये कैसे होता है। एनीवेज, चलिए, ये इशू नहीं है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में इन्हीं चीजों को आप आगे बढ़ा देंगे, आपका आंसर बहुत ही बेहतरीन आंसर होगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू मेक द
फिगर, तो आपके आंसर को 4 चांद लगा देगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा है? डिस्कस द रोल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन मेंटेनिंग ऑर्डर एंड impartiality, conducting in conducting legislative work and in facilitating best democratic practices। देखो, इस क्वेश्चन को खाली खींच दिया गया है। ओनली means the question is basically the role of presiding officer, and here it is written state legislatures। अब ये स्टेट लेजिस्लेचर होता तो भी कोई है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्लियामेंट होती तो भी कोई फर्क नहीं होता, लोकसभा होती तो भी कोई फर्क नहीं होता। द थिंग्स आर कंप्लीटली सिमिलर, नथिंग एल्स। जैसा लोकसभा में वैसा स्टेट लेजिस्लेचर में, कुछ भी फर्क नहीं है। और ये सब जो है ना, इट इज एक्चुअली द एक्सटेंशन, नथिंग एल्स, एक्सटेंशन ऑफ द सेम क्वेश्चन। ठीक है, सीधे इंट्रो शुरू कर देंगे। ठीक है, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर is elected by the members, among the members of the house, and it has dual role to play। दोहरा रोल है। पहला, to act as the presiding officer, okay, to act as the presiding officer and presiding officer and administrative head of the secretariat to the state legislature assembly, attached to the state legislature assembly। But in this question, only the first part is asked, role as the presiding officer। So role as the presiding officer shall be your body content। okay, तो अब आप लिखना शुरू कर देंगे कि द प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करता है, तो कंडक्ट द सेशंस एंड ensure there should be orderly debates, rules are enforced by him। ओके, आप किसी रूल का जो है एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, हालांकि इतनी जरूरत नहीं है। facilitates the discussion in the house and appoints the committees of the legislature, and if there is any need, then he appoints the chairpersons of the chairpersons of the committees, and even nominates the members। कई बार नॉमिनेशन से होगा तो नॉमिनेट कर देगा, अदरवाइज ये भी होता है। तो और ये लाइन जरूर लिख देना कि द कमिटीज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर एसेंशियली अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। ये जरूर लिख दीजिएगा। ओके, फिर इसके बाद मेंटेनिंग ऑर्डर एंड impartiality एंड फैसिलिटेटिंग बेस्ट डेमोक्रेसी। हमने कहा था कि ये क्वेश्चन को केवल खींचा गया है, जो लिखना है वही क्वेश्चन में है। thereafter you should write applies the precedents कि पहले क्या होता था। and you know, in the parliamentary form of democratic governments there are number of this precedents and customs। तो प्रेसिडेंट्स जो पहले हो चुका है वैसा ही चलेगा भाई, अगर लिखा नहीं है तो, यही कहता है ना वो। और इट इज expected from him that the presiding officer shall remain impartial। और आप सभी जानते हैं कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या होते हैं, मोस्टली होते हैं वो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स, लेकिन देयर इज द एक्सपेक्टेशन दैट दे शुड वर्क
इम्पार्शियली। तो इम्पार्शियलिटी का भी वो ध्यान रखते हैं। ठीक है। फिर पार्लियामेंट पार्टी लीडर्स, जितने भी डिफरेंट पार्टी लीडर्स होते हैं, सबसे मिल करके हाउस को चलाने के लिए कई बार, टू रन द हाउस स्मूथली, मेनी ऑफ द टाइम्स क्या करते हैं वो, एक जो है पार्टी, जो लोग पार्टी के मेंबर से, डिफरेंट पार्टी लीडर से मीटिंग्स भी करते हैं, कंसल्टेशन भी करते हैं, और दे एम्पावर द मेंबर्स ऑफ द हाउस टू raise the questions, to raise the issues, etc. etc. जिससे कि हाउस का फंक्शनिंग जो है वो बहुत स्मूथ चलता रहे। फिर जो है कंसर्न्स, इनसे रिलेटेड कुछ है, क्या है, देयर आर सेवरल काइंड ऑफ क्रिटिसिजम्स। पहला है कि एक्चुअली it is expected from them that they should work impartially, but they take the they show the partisan approach. They favor the party from which they belong. Dusra, there is also an allegation that there is the lack of independence of presiding officers. Mean the ruling party or the chief minister of the state exerts heavy pressure and influence on them. And as they show partisan approach in their functioning, that's why it is also alleged that they abuse the power many of the times. And there is lack of transparency in their functioning. And there is very limited accountability of the presiding officers, as the actions and decisions taken by the presiding officer in the house cannot be challenged in any court of law. Even that cannot be published without the permission of the presiding officer. That's why there is limited accountability. और अब्यूज ऑफ पावर में एक चीज आप चाहेंगे तो जोड़ देंगे कि many of the sometimes it is also alleged that presiding officers क्या करता है, अपोजिशन पार्टी के लोगों को अननेसेसरली सस्पेंड करता है ना। तो दैट इज आल्सो अब्यूज ऑफ पावर। फिर फाइनली डिले इन प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। जब भी किसी मेंबर के अगेंस्ट में एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत एक्शन लेना होता है, तो वो डिसीजन लेने में डिले करता है, स्पेशली व्हेन the member is related to the party from which he is। समझे। तो ये भी एक बात है, इसको आप लिख सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, तो यू शुड कंक्लूड लाइक द as the constitution expect and the parliamentary customs and precedents are established, presiding officers of the state legislature should work impartially, accountably, and they should take the decisions on the basis of consensus, because yeah, as लिखेंगे as the house is of a is a democratic house। यहीं पर खत्म करिए, सीधे लिखिए the house is democratic house, or you can say the house is considered as the temple of democracy। और अगर वही डेमोक्रेसी नहीं होगी हाउस में, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पर आप आंसर खत्म करिए। एंड आई होप you enjoyed, you understood the issues, and you have understood well how you can write best answer. Thank you.
मिलते हैं अगली क्लास में।